माय डियर स्टूडेंट एंड लर्नर, आज हम वो बात करने वाले हैं जो एनेस्थेटिक की स्ट्रक्चर की केमिस्ट्री. देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनेस्थेटिक. वी आर मोर फोकस्ड ऑन द लोकल एनेस्थेटिक. बिफोर गोइंग टू दिस केमिस्ट्री ऑफ लोकल एनेस्थेटिक, अगर आपने घंटी नहीं बजाई तो बजा दीजिए. तो मैं जब भी यहाँ से प्रेस करूंगा ना, तो ये घंटी आपके वहां पे पहुंच जाएगी. मेरा वीडियो तुरंत ही आप तक पहुंच जाएगा. ठीक है, चलते हैं. So division of the structure. The basic local anesthetic structure is divided into three parts. What are they? The first is hydrophobic part. Second one is bridge. And third one is hydrophilic part. If you see here, this is a hydrophobic part. Now another part is a bridge. That is very easily you can see the red color is a bridge. And that you can easily आप देख सकते हो कि ये green color, that is an hydrophilic part. Now, who will provide the hydrophobic and who will provide hydrophilic? This we can say hydrophilic part connected to hydrophobic part via simple bridge. So, aromatic ring provides the hydrophobicity. A bridge is basically two types of functional group. One is ester or amide, and third one is hydrophobic philic part that provide the pH 7 to 9. I will tell you the later part of this video how it's 7 to 9 and why 7 to 9 is required. So first thing is bridge. I told you that a bridge is important for us. So this is a hypothetical structure. This is exact structure of local anesthetic lidocaine, and this is exact structure of procaine. If you see, this is amide. एंड इफ यू सी दैट दिस इज एस्टर, ये एस्टर है, तो ये दोनों में से एक ही हो सकता है. एंड आई हैव गिवन यू टू एग्जांपल. सो फर्स्ट सेंटेंस इज वेरी इजी. अगर अमाइड और एस्टर हो गए तो हाइड्रोफोबिसिटी प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आने की आवश्यकता ही बहुत कम है. सेकेंड थिंग इज alkyl chain of 1 to 3 carbon. This is 1 2 3 carbon मीन्स कि ये 1 हो गया, this is 2. Now here 1 2 and 3, this carbon. If this is increase number of carbon, ये bridge के carbon बढ़ जाएंगे, तो decrease the formation of onium ion, and decrease the formation of onium ion decrease local anesthetic. Now the question is what is onium ion? So basically मैं आपको बता दूं कि ये जो part है ये basicity provide करता है, and in this case of basicity react with acids and it form the plus charge in a body. So whenever you have non-metal with positive charge, they provide what? This is known as a onium suffix. I tell you that this is carbocations, another name is carbonium, H3O plus, hydronium, then NH4 plus, ammonium, like that. पीरियोडिक टेबल में जो राइट हैंड साइड होते हैं सबको बोलते हैं. तो व्हाट हैपन, सपोज आई टोल्ड यू आई हैव स्ट्रक्चर लाइक दिस CH3 CH3. अगर ये CH3 होगा तो प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि H प्लस यहाँ पे लॉन पेयर के साथ घुस के रिएक्शंस कर सकेगा. बट इफ यू मेक सपोज दिस इज CH3, दिस इज CH3, एंड आपने लंबी चौड़ी ऐसी कोई चेन बना दी 3 कार्बन से जाए 1 2 और 3, तो ये क्या हो जाएगा कि ये तो मैंने ऐसे स्ट्रेट बताई है, बट इन प्रैक्टिकली इन स्ट्रक्चर इफ यू सी, तो ये रिंग कैसे जुड़ जाएगी, देखो ऐसे जुड़ जाएगी 1 2 3 मोर देन 4 लाइक दैट. तो ये क्या हो जाएगी कि ये लॉन पेयर है ना, क्लोज हो जाएगी. अगर वो क्लोज हो गई तो H प्लस रिएक्ट नहीं करेगा, H प्लस रिएक्ट नहीं करेगा तो ओनियम बनेगा ही नहीं. हमें ओनियम बनाना है फॉर लोकल एनेस्थेटिक. सो ये 2 कार्बन 3 कार्बन तक हो गए तब तक ओनियम बन जाएगा. दे वी हैव नॉट एन इश्यू, इज इट? तो ये बात हो गई ओनियम वाली. चलो देखते हैं आगे फिर.
So ester group are more susceptible. Now we have two functional group. यहाँ पे कौन से दो functional group है? One is ester and another one is amide. आप देखोगे ना तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसा बताया हुआ है कि एक ये चीज है और ये एक चीज है. जब उसका हाइड्रोलिसिस हो गया ना, when it is undergone the hydrolysis, basically in case of hydrolysis this portion remove based on SN2 reaction. आपको थोड़ा बहुत जानना हो तो उसका SN2 का रेट फास्ट होता है, उसका SN2 का रेट फास्ट होता है. इसलिए क्या होता है कि इट इज अंडरगॉन हाई. तो एस्टर और अमाइड में कौन जल्दी से हाइड्रोलाइज हो जाएगा? एस्टर. ये हाइड्रोलाइज हो गया, यहां से वो ब्रेक हो गया, फिर तो बात पूरी हो गई. तो क्या होगा कि उसका शॉर्ट ड्यूरेशन है. एक रीजन केमिकली ये है इन विट्रो में. अब अगर मैं बता दूं इन विवो में क्या होता है, इन आवर बॉडी वी हैव एस्टरेज एंजाइम इन आवर ब्लड एंड द लीवर. So that esterase enzyme that break down this group into two parts and shorter the duration. तो तीन बातें हो गई. ये ब्रिज किसका बना हुआ है, उसकी संख्या नंबर ऑफ कार्बन बढ़ जाएंगे तो क्या होगा, इसमें ज्यादातर कौन ससेप्टिबल है. आपको कुछ भी पता नहीं चले तो आपको याद रखना है कि पानी से हाइड्रोलिसिस होता है और पानी में ऑक्सीजन होता है तो ऑक्सीजन वाला जल्दी से हाइड्रोलिसिस हो जाएगा. दिस इज जस्ट ट्रिक. So hydrophobic part. This is an hydrophobic part. If you can see, it is. So कौन इसको हाइड्रोफोबिसिटी प्रोवाइड करेगा? तो यहाँ पे देख लीजिए, एक ये बात हो गई और यहाँ पे एक ये बात हो गई. आप देखोगे ना तो एस्टर में पैरा पोजीशंस पे अमाइन है और अमाइड फंक्शनल ग्रुप में ऑर्थो डैश भी बोल सकते हो. 1 2 3 4 5 और 6, 2,6 डाइमिथाइल भी बोल सकते हो. ठीक. So what happened? Provide a lipophilicity to the molecule. Molecule को lipophilicity भी चाहिए. ये ऐसा molecule है, it require both hydrophobia and hydrophilicity. Interact with the binding site of the local anesthetic. चलो ये बात हो गई कि ये जो पार्ट है ये सोडियम चैनल के साथ बाइंड होने में मदद करेगा. इट्स अ पार्ट. किसी को तो सोडियम चैनल के साथ कनेक्ट होना ही होगा. सो पैरा सब्स्टिट्यूटेड एस्टर देख लीजिए, ये एस्टर भी है और ये पैरा पोजीशन भी है. सो दैट प्रोवाइड द लिपोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सब्स्टिट्यूशन. यहाँ दो सब्स्टिट्यूशन चाहिए. आइदर सब्स्टिट्यूशन लिपोफिलिक होना चाहिए और ये सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रो डोनेटिंग ग्रुप होना चाहिए. सो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के लिए आपको नहीं पता चलता तो मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मेरी लिंक डाल दूंगा. तो इंडक्टिव इफेक्ट आप देख लीजिए और रेजोनेंस देख लीजिए. इसमें मैंने अच्छी तरह बताया हुआ है व्हाट इज I प्लस एंड व्हाट इज M प्लस. अगर वो पता चल जाएंगे ना, आई हैव गिवन अ ट्रिक देयर आल्सो. सो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऑन द एरोमेटिक रिंग created a resonance effect between the carbonyl group and the ring. यहाँ पे सपोज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आ गए. देख लीजिए, मैं बता देता हूँ आपको. शायद मेरे पास ऐसा एक स्ट्रक्चर है. ठीक है, तो ये क्या होगा कि यहाँ से निकालेगा और यहाँ से आ जाएगा. सो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऑन द रिंग. यहाँ पे डोनेटिंग ग्रुप आ गए. चलो यहाँ पे देख लो कि डोनेटिंग ग्रुप आ गया तो ये यहाँ पे प्रोवाइड करेगा. यहाँ से ये रेजोनेंस हो जाएगा. एंड आपको पता है कि रेजोनेंस स्टेबिलिटी बढ़ाता है. अमाइड के केस में उसका हाइड्रोलिसिस चल जाता है. सो इन केस ऑफ अमाइड ये जो H है ना, देखो यहाँ पे H नहीं है, यहाँ पे H है. एक मिनट में दिखा देता हूँ आपको. देखो यहाँ पे H है तो ये H ये एसिडिक प्रोटॉन हुआ, वो हाईली ससेप्टिबल होता है रिएक्शन करने के लिए. तो उसकी रिएक्शंस कंट्रोल करवाने के लिए ये किसी के साथ रिएक्ट, यहाँ पे H नहीं है इसीलिए ऐसा ग्रुप यहाँ पे नहीं चाहिए. बट इन द केस ऑफ दिस टू प्रोटेक्ट इट, तो यहाँ पे ये बल्कि ग्रुप आ जाएंगे ना तो कोई यहाँ पे रिएक्शंस करने नहीं आएगा. इसीलिए हमको ऑर्थो डाइमिथाइल ग्रुप्स चाहिए ही चाहिए. सुटेबल प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड.
लेट अस सी हाइड्रोफिलिक पोर्शन. नाउ दिस इज हाइड्रोफिलिक पोर्शन. मैंने बताया कि ये पोर्शन इसीलिए है, it will react with acids and form the onium ion, and onium ion is have positive charge. It is also part, ये भी सोडियम चैनल के साथ रिएक्शन करने में लगातार मदद करेगा, क्योंकि सोडियम चैनल बेसिकली से किसकी बनी हुई होगी, इट इज मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स. लेट अस सी हियर. तो ये पार्ट्स की हमें थोड़ी बहुत स्टडी करनी है अभी. ये पार्ट्स और ये भी हमारा एक पार्ट है, देख लीजिए. टर्शरी और सेकेंडरी अल्काइल अमाइन पार्ट ऑफ द नाइट्रोजन. देखो ये टर्शरी होगा चलेगा, सेकेंडरी होगा चलेगा, और नाइट्रोजन इज हेट्रोसाइक्लिक रिंग. देखो ये मैंने यहाँ पे बताया है. व्हाट इज दैट? पायरोलिडिन. दिस इज पायरोलिडिन. पिपरिडिन. दिस इज पिपरिडिन. दिस इज मॉर्फोलिन. तो ये देखो मॉर्फोलिन है ना, ये मॉर्फोलिन ऐसी होती है. दैट टाइप्स ऑफ रिंग, ये नाइट्रोजन होना चाहिए. दैट शुड बी अ सैचुरेटेड नाइट्रोजन होना चाहिए. यहाँ पे एक बताई हुई बुपीवाकिन में. तो उसको क्या करना है भाई, ये जो फ्री रेडिकल्स होगी, सॉरी फ्री रेडिकल लॉन पेयर होगी ना, उसको H+ के साथ जुड़ना है मिनरल एसिड्स के साथ, और ओनियम बनाना है. So let us see the onium ion produced by the protonation of tertiary amines. मैंने बताया कि ये उसको यहाँ पे ओनियम बनाना है, उसको भी यहाँ पे ओनियम बनाना है, उसको भी यहाँ पे ओनियम बनाना है. ओनियम क्या चीज़ है वो मैंने बता दिया, और एसिड के साथ रिएक्शन होने के बाद ही हो सकता है. एंड ओनियम इज रिक्वायर्ड टू बाइंड विद द वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल. किसके साथ जुड़ेगी वो? वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल के साथ जुड़ जाएगी. सोडियम चैनल के साथ क्यों जुड़ना है? क्योंकि ये उसकी मैकेनिज्म है. तो ये बात थी लोकल एनेस्थेटिक की. बच्चों, माय डियर लर्नर एंड स्टूडेंट, आपको ये अच्छा लगा हो, इसमें से जो चीज अच्छी लगी हो, प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स सो आई कैन improve or continue a good practice for the further learning for pharmacy fraternity. Thank you. Thanks a lot.